Sir, you decide. I don't have any problem. I am ready. Yes, sir. We can start, sir. Okay, sir. So, good afternoon, everyone. Hope that you are ready to take up the new features of Excel after the lunch. Now, most of you must have used actually regularly the common Excel functions and sheets. Uh, some doubts will be there for different people while doing this practically. So we'll solve those, try to solve all those doubts also. We'll go through certain functionalities, what is there in Excel, what we can do, and there are so many things which we can cover. Slowly we'll go through one by one, and what are things we can cover maximum within this limited time, we'll do it. Okay. Uh, I want your cooperation in this because I have sent one file which is big file because for doing certain things, a big file is really good because uh, certain things like say summarizing, summing and other things, it requires some data which is not advisable to feed online at the time of the training. So one file I sent in group in WhatsApp. You may download this and try to work on those functions on that file. Otherwise, if you are comfortable, you can use these functions in your file what you are having. The file should be Excel and then some fields should be there where we can use all these functions. We start with normal working of the Excel. So I'll share my screen. I hope screen is visible and the file which I have already sent to you is visible to you. The name of the file is D2S1 underscore vouchers underscore functions. This file is we are using in our HTM in audit in IT environment or idea lectures. So the data is, lot of data is there in this file. Somewhere around 53,000 and above records are there. So it will be useful. You first of all download this file and try to use this. Otherwise, if you are comfortable for all these things, what you will be doing, you can use your own file. The purpose is that you should be practically able to use this, whatever you will be learning in any kind of file or any kind of situation you will be facing. And you to clear your doubts based on your, say, some functions you may be knowing, but some typical uh, functionality if you want, you can just show this to me, ask me this to me and I will be taking it. Now, uh, just few minutes only to show you the if or you already know then it's okay, or otherwise certain things which if you are not using it or some long cut you are using, we'll be just going through some functionality or some regular default features of the Excel, just like any other Microsoft package or any other window based package. You will be having this screen where the tabs will be there and commands will be there. There are so many commands in each tab and you can use it. Now, as you know, with each and every version of the Excel, new features are added. So currently, whichever version is there, we'll be covering those functions which are common to all the versions of the Excel. Most of the versions, it will be available. The functions which you feel that some different is there than your version you are having, then you should be just try to search that where it is available, because the setup, the look and the arrangement of the say tabs or commands may be changed. So you have to just search it, but you know that which function you are using, which is available to all the versions. It will be available whatever version you are using.
So we'll be concentrating on the actual practical understanding of the Excel working. You know, whenever we start, I always show you, just like in Word, you will be having options here, which are the default options for any of the program. So for Excel also there is one. When you go to the file menu, in file menu you will be having options. And this is very important because when you go to the file menu, you will be finding so many features which are available to you, or sometimes if you don't find those features, you have to look for them in Excel options, whether it is available, whether it is enabled. So here you will see that when creating the new workbook, what is there? Include these many sheets. Can you see options here, everybody? And I hope that you all are also opening Excel and using this option in your computer also. Correct? Yes, sir. Yes. Yes. See, now see, we are having this general functionality of the options. General options are there. In general option, you will be seeing that font size is 11 here. If you change this from now onwards, when you save this particular setting or option, next time onwards, whenever the file will be created, thus this new created file will, this font size and other things, whatever you are changes you are making will be applied. Now we say include this many sheets. There is one sheet. You must have seen that when you start, you will be having 3 sheets. 3 sheets by default. I made it to one sheet because generally those 2 sheets, even if you are not using, it is lying idle there. Whenever you want, you can insert as many sheets you want, but unnecessarily keeping blank sheets, that is not advisable. So first of all, whenever I get this Excel, I change this number of sheets to 1, so that whenever I create a new document, only one sheet will be available there, and then if I want, I can add new sheets. Correct? Here some functionality or some default options are there which are very useful to you, which I will show you. Actually we'll be doing this, but before this, I'm just highlighting, and then practically also I will show it to you. One is enable fill handle and cell drag and drop. Drag and drop means what? You can select something, take it just by mouse and drop it somewhere, and that particular value or that cell value will be shifted to new place or copied to new place, depending on the which key you are pressing. But just by using mouse, you can do this. Correct? And just a moment, one more, I'll show it to you. Allow editing directly in cell. So what happens now for, I'll just close this. Any item, when say I am selecting this, now I wanted to change, I can go here and change this. This is the editing area. This is the editing area, correct? But sometimes data is very big and it is not comfortable for you to do this here, or sometimes it is very convenient for you to do this in the cell itself. So that time you can directly double click on the cell or press F2, and then the cell will be open for editing directly inside the cell. So if I am say in this cell, so if I directly double click here, now I can directly make changes in this cell. I don't need to go here and change. I can directly make changes here. So this depends on the option you have given there, that whether direct editing of the cell is available or not. Now, what is fill handle? Let us take one example. In sheet 1, I am typing 1, 2. Now I am selecting this and I wanted to drag this and make a full list continuity. 1, 2 means that gap is 1, increment is 1. So if I drag this,
on other cells, it will be incrementing from 1 to 20. See, you can do this. But here when you, how to do, when you are selecting 1 and 2, that means you wanted to say that it is starting with 1 and second value says that what is the increment. So with these two values, you are telling that now you continue adding 1 into next values if I wanted to fill. So here the fill handle will be there. When you go to this dot, the icon becomes dark plus. Otherwise, this is the white plus. Here dark black plus, it is becoming small. So it is a fill handle. You can drag it and you can use it for filling. If I am having say Pune and you wanted to put this Pune in all the cells down, so you can just fill this and everywhere Pune will be coming. So all this fill handle, that totally depends on your option in advance, where this is given enable fill handle and cell drag and drop. If you disable this and say OK, now here if you find, see, if I am writing say Mumbai and I wanted to drag this, I cannot drag this because this is not becoming dark small plus. Why? Because I have disabled the drag and fill. I cannot take these two other places. Say I wanted to move this Mumbai after Pune, but I cannot take this. But if I go back, I go to the option, I go to the advanced option and again make it enable fill handle as well as drag and drop. So when I say this, now I can select this and when I go back there, I can just go to the last corner and there it will become plus sign from where I can just drag it and I can put it here. It is like a cut paste. I am cutting from here, pasting here. So these things, if you are doing and if it is happening properly, that doesn't mean that this picture is permanently or directly available into the Excel. It is depending on the options. If in some places, if you go to some other person's computer and if you find that you cannot drag or drop or you cannot have this fill handle, that means you have to go to the option and enable it. So many people get confused that in one machine it is available, in other machine it is not available. The reason being it is not enabled. If you enable it, it will be available on any machine. I hope that you are getting this. This is very useful feature and most of the time we are using. Now, you are already having some data up to 19 rows in A and C and up in 20th row in C. Now, if I am writing here some say 1501, say this is a number which I wanted to copy down, so I can just drag. So it will be allowing. But if I go to this fill handle and double click, when you double click, it will go on copying the detail directly up to the last cell, up to where the value is available into the adjacent column. Let us assume this. Once again, I will do this. I am removing this Pune and I am removing this 9. So here there is nothing. There are two parts. Up to these values are there and then again starting from here to here. Now if I take this fill handle and I fully take this, everywhere it will be coming. But if I take the fill handle and double click on this, it is coming up to the first blank into the adjacent cell. Keep this in mind because sometimes you have the data of 1000 rows. In 1000 row, you think that it is what you have copied and by just double clicking, it has reached up to the 1000 column or 1000 row. It is not the same. If it finds some blank in the adjacent column, it will stop there. So you have to check it when you are using this feature. You have to check that whether what you intend to do that has been done or not. Second thing, let us say that here 9 is already there.
So now in left column something is there, in right column there is a gap. Now let us see that if I am clicking double here, it is going up to end. Why? Because in both the cell it is taking the data. It is quite possible that one column may be having data, other column is not having the data, but both are adjacent columns. So Excel is intelligent enough to understand that your data, that is one blank column in C and one blank column in A, both are filled in the B column. Both the adjacent, the total consolidated list is taken up to the end. So up to the Mumbai it is taking, even though there is no value in A, and even though there is no value in C9, it is taking because value is there in the A. So these things you have to keep in mind. Any adjacent cell or column, you say, if it is blank both the side, then it will stop there. If any one column is up to the end, it will go up to the end. I hope you are understanding this. Any doubt on this? This each and every feature is having some specific constraints and some power. You have to understand. That's why I'm giving three different examples. How to fill the handle and take the value. When you are taking the character value, it is copying the same value. When you are taking 1, it will be copying 1, 1, 1, 1. When you are taking 1 and 2 and highlighting both, it is taking increment as well. And when you are taking single and double clicking, it is taking the same value there. So these things you should be knowing, which will help you in a big data. There are hundreds and thousands of rows of data. That time this will be really very useful. If you are adding one column where you wanted to add a district name which is not there, you just enter one district and then put, for say, Maharashtra, and all the data is of Maharashtra. You need not just take the fill handle and copy, or say Control C and Control V and then select, highlight all the cells. You just put it somewhere and then just go to the fill handle and double click up to the end where the blanks are not there on the both the side, it will fill. So it will save a lot of time, and even though different ways of doing this are available, this is the best way. So you should be concentrating on saving our time in all these things, and that is called the special feature. It is available into the toolbox. You should be knowing. If you know, it will save your time. Otherwise, you will be doing the other way. I hope this feature is clear. How to enable it, how to disable it, how to use it with the increments, with the values, and when the blanks are there, how it is handling the blanks in the adjacent columns. So this is one of the feature I wanted to show it to you, which will help you in using the data features. Now, normally what happens? You must be knowing cut, copy, paste, everybody will be doing. Undo, redo, you will be doing. So there is no need to repeat all these things. Moving among the cell, sometimes I found that some people are using some, say, different long cuts also they are using sometimes. So let us take this sheet where this is the column where one blank is there. This is the column where no blanks are there, and this is the column where no blanks are there. Correct? Now, here I am just removing these two values. Now, here two blanks are there. Here one blank is there. Here no blank is there. Three different situations I am taking. I am on the first row of that particular column. Now, if I wanted to shift down to the last cell, what is the way to do this? Anybody? See, here only 19 or 20 values are there. Consider this 100 times more, 1000 value, 2000 value, and you wanted to go to the last cell of that particular column. What is the way to do this? Shortcut? Anyone? Anyone? नो सर, प्लीज बताइए. देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये एक 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 करते हैं या पेज डाउन करते हैं. करेक्ट? तो पेज डाउन में उसमें भी बहुत सारा डाटा रहेगा तो बहुत टाइम जाएगा. आपको क्या करना है, कोई भी सेल में, आप फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, आप कंट्रोल दबा के अगर अप या डाउन एरो करेंगे तो स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा. लेकिन उसके लिए एंड क्या है, जो मैंने डिफाइन किया, जहां पे भी ब्लैंक आया
तो वो समझेगा कि ये लास्ट डाटा है। तो पहले कॉलम में 1 से लेकर 19 स्टार्टिंग से एंड है। मैं 4 नंबर का वैल्यू पे हूं। अगर मैं कंट्रोल अप एरो करता हूं तो वो फर्स्ट सेल में सीधा चला गया, A1 में चला गया। मैं कंट्रोल डाउन करता हूं तो वो 19 पे चला गया। आपने देखा? करेक्ट। अभी वही चीज Yes, हम sir. लोग करते अभी Yes, वही sir. चीज हम लोग करते हैं बी में। बी में मैं 1 में हूं, करेक्ट। 1 में जाके मैं कंट्रोल डाउन करता हूं तो वो जाता है 11 पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैंक चालू हो गया, बराबर। अभी आप देखेंगे कि वहां पे 2 ब्लैंक है, तो मैं वापस कंट्रोल डाउन करता हूं तो वो क्या करता है, जहां पे ब्लैंक खत्म होकर डाटा चालू होता है वहां पे जाता है। तो आप ये बहुत यूजफुल फीचर है और बहुत सारा जगह पे आपका बहुत टाइम बचाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को स्क्रॉल करके लास्ट में जाते हुए देखा है। वो स्क्रॉल करने का जरूरत नहीं है। अभी 5,000 10,000 अगर रोज है तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, कभी ऊपर ज्यादा चला गया, इसका जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, कंट्रोल एंड एंड याद रखना, कंट्रोल एंड एरोज याद रखना है। अप एरो मतलब ऊपर जाएगा, डाउन एरो मतलब नीचे जाएगा। जहां पे ब्लैंक है वहां पे वो स्टॉप करेगा। अगर आपने सेकंड टाइम किया तो अभी वो ब्लैंक को चेक करेगा। ब्लैंक जितना आएगा उसको वो स्किप करके जहां से डाटा चालू होता है वहां पे जाएगा वो। जैसे अभी आप सोचिए, यहाँ पे हम लोग पहले वापस से स्टार्टिंग लेते हैं। मैं एक बार कर रहा हूं तो वो जहां पे वैल्यू खत्म होता है ब्लैंक चालू होता है वहां पे गया। अभी चालू क्या हो गया, ब्लैंक। तो अभी मैं डाउन एरो करता हूँ कंट्रोल के साथ में, तो वो ब्लैंक खत्म होकर डाटा चालू होता है वहां पे जाएगा। अभी मैं वापस करता हूं, वापस डाटा खत्म हुआ और ब्लैंक चालू हुआ। और एक बार कर दूं तो वो एंड ऑफ द कॉलम चला जाएगा, 65536। ये देखिए रो का नंबर यहाँ पे आता है। तो आप सीधा लास्ट में चले गए। अभी समझो वो लास्ट में चले गए तो आपको ऊपर आने के लिए पेज अप या स्क्रॉल बार करने का जरूरत नहीं है। गलती से भी आप लास्ट तक चले गए या बहुत नीचे चले गए, आप कंट्रोल अप एरो करेंगे, जहां पे डाटा स्टार्ट होता है वहां पे पहुंच जाएगा वो। वापस स्टार्ट करेंगे कंट्रोल अप एरो, वापस जहां पे ब्लैंक चालू हुआ वहां पे गया, वापस मैंने किया तो ब्लैंक खत्म होकर डाटा चालू हुआ। आप कितनी भी बार ऐसा रहेगा हम लोग चेक करेंगे वापस। अभी ये सी में जाते हैं। सी में देखिए सिंगल सेल ब्लैंक है तो भी सेम रूल अप्लाई होता है। कंट्रोल डाउन किया, ब्लैंक के पहले आ गया। कंट्रोल डाउन वापस किया तो वो सिंगल ब्लैंक है, तो सिंगल ब्लैंक के बाद में पुणे चालू हुआ वहां पे आ गया। उसके बाद में मैंने वापस डाउन किया, वो सीधा मुंबई पे नीचे आ गया। अभी हम लोग वही चीज देखते हैं कि ये सब चीज मैं वापस कॉपी करता हूं और नीचे, लेकिन इधर मैं इतना सारा ग्रेप रखा। अभी देखिए इतना सारा है, तकरीबन 45 44 आ गया। अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तो आपका एकदम जो फाइनल क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल डाउन तो आपका 11 नंबर पे आया, फिर 2 ब्लैंक है, आपने कंट्रोल डाउन किया, दोनों ब्लैंक को उसने पास किया और गया 14 पे जहाँ पे डाटा चालू हो रहा है। फिर कंट्रोल डाउन तो वो आ गया 20 पे जहाँ पे ब्लैंक चालू हुआ। फिर मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ, अभी 4 ब्लैंक है उसको भी उसने पास किया। इसका मतलब कि 10 ब्लैंक रहेगा तो भी वो पास करेगा, 100 ब्लैंक रहेगा तो भी पास करेगा। जब तक कि उसको डाटा नहीं मिलेगा वो पास करेगा। अभी मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ, वापस 2 जो ब्लैंक है वहां पे आ गया, वापस मैंने किया, वापस किया। अभी मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, उसको डाटा नहीं मिल रहा है तो सीधा लास्ट में जाएगा वो। तो जब तक डाटा मिलता है, डाटा ब्लैंक उसको वो जंप करते रहेगा। तो ये जंप है ना बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर 4 बार जंप किया तो स्टार्टिंग में पहुंच गया। तो आई होप कि दिस विल बी यूजफुल टू यू, दिस फीचर विल बी यूजफुल टू यू। ये खाली मूवमेंट का फीचर है लेकिन आपका टाइम बचाता है, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मैं सोचा ये शायद आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये फीचर इसके अंदर इंक्लूड किया है। एनी डाउट ऑन दिस? आप लोग समझ गए? यस Yes, sir. sir. यस सर। अभी देखिए दूसरा एक चीज क्या रहता है, कोई भी एक्सेल में आप कभी भी कुछ करते हैं तो नॉर्मली हमारे लिए ये एक्सेल किस पर्पस के लिए ज्यादा यूज होते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए लास्ट में यूज करते हैं उसको। वो भी सब डाटा हो गया, उसको अगर प्रिंट करना है या कहीं पे भेजते हैं तो थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। वो वर्ड की तरह ऐसा पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग करने का जरूरत नहीं होता है इसमें। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डाटा
और उसका फंक्शनैलिटी मतलब जो आउटपुट है उसका, वो जो कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज, वो बहुत यूजफुल है। तो इसलिए इसके अंदर इतना सारा फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग भी दिया हुआ है। फॉर्मेटिंग को हम लोग अभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ड में जो है वही यहाँ पे आपको सब मालूम है। खाली एक चीज है कि वर्ड में जो पैराग्राफ या इंडिविजुअल सिलेक्शन के बेस पे होता है, यहाँ पे सेल वाइज होता है, सेल के हिसाब से होता है। इंडिविजुअल सेल को आप कलर कर सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसका बॉर्डर दे सकते हैं। सब चीज जो हम लोग वर्ड में करते हैं, ये डायरेक्ट इंडिविजुअल सेल, पूरा आपका पूरा रो, पूरा का पूरा टेबल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको अप्लाई होगा। नंबर 1। सेकंड थिंग, आप कोई भी चीज इसके अंदर करेंगे, अभी हम लोग मेन डाटा पे आते हैं। किसी मैडम ने, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कुछ क्वेश्चन था मैडम का, मल्टीपल यस शीट सर, में यस कैसे सर। करना। यस मैडम। सर शीट का सर आता है मुझे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डेस्कटॉप पे मेरे को एक्सेल फाइल पड़ी हुई है और उससे मुझे डाटा फैच करके एक शीट में डालना है, तो मतलब वो वो एक्सेल कैसे में ही करूँगी है, सर? वो एक्सेल में ही हाँ, डाटा एक्सेल है। में ही है सर। यस सर, हाँ, एक्सेल में ही है। और क्या करना है आपको? सर बस वहां से फेच करना है डेस्कटॉप से, और अपनी शीट में जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ उसमें वो डाटा देखिए, डालना है। सिंपलेस्ट वे इज, हमेशा हम लोग डाटा डालने से पहले चेक करते हैं नॉर्मली कि पूरा डाटा लेना है, कौन सी शीट लेनी है, क्या लेनी है। तो द बेस्ट वे इज, समझो ये शीट मुझे चाहिए और मेरे पास तो इसमें 25 शीट होगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले वो डाटा सिलेक्ट कर लूंगा। करेक्ट। ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया अगर मैंने, और अगर मैंने कॉपी किया, तो आप दूसरी शीट में उधर जाके पेस्ट कर सकते हैं। नहीं सर, सिर्फ एक 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 सेल का इंफॉर्मेशन लेना है, सिर्फ एक सेल का। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, आप कॉपी कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं? लिंक देखिए करना है सर। देखिए क्या होता है ना मैडम, वही अभी हम लोग स्टार्ट वही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, एक रहता है पर्टिकुलर शीट जिसके अंदर आपका डाटा है, और वहीं पे आप उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला सब यूज करते हैं। नंबर 1, करेक्ट। पहला यस सिनेरियो सर। क्या है कि आपके शीट में डाटा है, और उसी डाटा के ऊपर आप कैलकुलेशन कहीं पे कर रहे हैं, आउटपुट वही शीट में कर रहे हैं। सेकंड है, उसी वर्कबुक के अंदर दूसरे शीट में आप कर रहे हैं, करेक्ट, लिंक। यस सर। और तीसरा है एक्सटर्नल। वो एक्सटर्नल लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसा है कि वो फाइल जो अगर नहीं मिला तो एरर मैसेज आएगा। करेक्ट। यस सर। अभी समझो। सेकंड थिंग, कभी कभी कुछ कुछ जगह पे राइट्स का भी रहता है। अभी आपने डेस्कटॉप पे रखा है और आपका ही जो ऑलरेडी लिया तभी उसको राइट्स था, बाद में भी राइट्स है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो राइट्स हो गया या वो फाइल किसी ने मूव कर दिया, तो फिर आपको वो जो जहाँ पे लिंक किया है ना, वहाँ पे वो वैल्यू मिलेगा नहीं। करेक्ट। हाँ, यस सर। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिंक जितना हो सके इंटरनली करेंगे तो आपका डाटा एकदम परफेक्ट रहेगा। एक्सटर्नल करेंगे तभी आपको ध्यान रखना है कि आप तो नहीं करेंगे और किसी ने भी कर दिया, तो आपको फिर वो ढूंढना पड़ेगा वो डाटा वहां पे, वो लिंक को या तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, या तो फिर वो लिंक जहां से लिया वो फोल्डर में वापस वो फाइल वही नाम का रखना पड़ेगा, और फिर बाद में आपको डाटा मिलेगा। तो इसलिए आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। करेक्ट। यस सर। तो सब ओके चीज सर। पॉसिबल है। एक्सेल के अंदर बहुत सारे मतलब एक बार एक्सेल शीट में आपने कुछ डाला, वो सब जगह पे आपको अवेलेबल होगा, इतना याद रखिए आप। यस। ठीक है, हम लोग करेंगे ओके सर। उसका भी। मैंने तो एक्चुअली वो जब अपना पे का था ना डाटा, अभी हमारा जो नॉन फंक्शनल का जो फिक्सेशन हुआ था, तभी हम लोगों ने उसका जो रिपोर्ट देने का था, तभी हम लोगों ने सबका अलग अलग एक्सेल फाइल में कैलकुलेशन करके उसका जो समरी है वो दूसरा एक एक्सेल शीट में बनाया था। तो जो आप बोल रहे हैं वही है ना, हाँ वैसे जी, ही हाँ ना? जी। यस हाँ। सर, यस सर। लेकिन कल एक है कि मैंने जैसे बताया कि अगर मैं 10 फाइल से ले लिया, लेकिन फिर बाद में वो फाइल में से कोई फाइल नहीं है, तो वो आपका पूरा डाटा है वो फिर आपको मिलेगा नहीं, वो एरर आएगा। करेक्ट। तो ये बेटर रहेगा सर कि उस शीट का आप जो मैडम, वन आप टू इसमें वन काम इतनी कर रहे सारी हो। शीट बना सकते हैं, इतनी सारी शीट बना सकते हैं कि आपको टेंशन ही नहीं है। आप एक शीट बना के डाल दो अगर ज्यादा डाटा नहीं है तो। हाँ जी, अगर हाँ जी। कंपलसरी नहीं है, वो बहुत बड़ा टेबल है, उसमें का कोई भी बहुत सारा डाटा आपको चाहिए, वो अलग बात है, ऐसा बहुत रेयर केस रहता है। लेकिन अगर शीट बना सकते हैं तो बेस्ट है। आपको जितना डाटा चाहिए खाली वो एक शीट में डाल दो, और वहां से इंटरनल रेफरेंस दो, आपके लिए एकदम सेफ रहता है। यस सर, ये बट ठीक दैट इज रहेगा। नॉट कंपलसरी, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। करेक्ट। ओके सर। एडवाइजेबल है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिकमेंडेशन बोलेंगे ना, जैसे हम लोग बोलेंगे कंपलसरी है और रिकमेंडेड है, तो वो दोनों में जो फर्क है वो आपको पता है।
यस सर। सेकंड थिंग, अभी देखिए मैं ये फाइल क्यों लिया है, ये फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा है, हम जो चाहे वो इसमें से यूज कर सकते हैं, हर एक फीचर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए डाटा ज्यादा होने का एक फायदा है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोगों को ऐसा कुछ क्रिएट करते बैठेंगे तो छोटे मोटे फंक्शनैलिटी के लिए ठीक है, जब ऐसे बड़ा कुछ दिखाना है तो जैसे कि समराइज कुछ करना है तो इतना सारा क्रिएट करने में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कोई ना कोई एक सिंपल फाइल हम लोगों ने लिया है। दिस इज अ वीएलसी डाटा, करेक्ट? तो सबको मालूम ही रहेगा, सब लोगों ने वीएलसी से रिलेटेड डाटा तो देखा ही रहेगा कहीं ना कहीं। अभी आप इसमें देखेंगे कि कोई भी फाइल आएगा, बहुत बार मैंने देखा है या आप लोगों ने भी देखा रहेगा, या ऐसा देखा येलो कलर का ऐसा एरर मैसेज आता है, करेक्ट? आप लोगों ने किसी ने देखा है ऐसा? ये येलो कलर का, जैसे कि ये देखिए अंबाला में कुछ नहीं लिखा है, वाउचर नंबर में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेजर में लिखा है 0070। उसका मतलब क्या? कैन एनीबडी टेल मी? सर ये देखा है, ये देखा है सर। हाँ, उसका मीनिंग कुछ मालूम है किसी को? सर पता नहीं, अभी जैसे मैं काम कर रही थी तो जैसे ये वाली चीज बार बार आ रही थी, तो ठीक वो है, ये बोल रहा था कि सेल में जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ना वो नया है, कुछ ऐसे करके करेक्ट सर है। आ वो रहा था। फॉर्मूला वाला अलग है मैडम, ये जो मैं बता रहा हूँ वो भी एरर ही है। फॉर्मूला वाला एरर भी हम लोग देखेंगे जब आएगा तो। वो ओके सर। कभी आपने जैसे कि समझो, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कॉलम में नॉर्मली हम लोग जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी किया हमने, समझो, हाँ, हाँ फिर जी सर। नीचे के रो में भी हम लोग उसका कॉपी करते तो सेम फॉर्मूला कॉपी करते बराबर, यस सर। ठीक है। लेकिन कभी कहीं पे आपने ए प्लस बी प्लस सी के बदले खाली ए प्लस सी किया तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं आपने गलती तो नहीं किया, तो वो आपको पूछने के लिए ऐसा कभी एरर देता है कि आपका फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो यस क्या सर। आप वही फॉर्मूला डालना चाहते हैं या ऊपर जो फॉर्मूला है वही आपको कॉपी करना है? इसलिए वो कभी यस कभी सर। एरर देता है, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली एरर, बराबर। ओके सर। सेम थिंग अप्लाइज हियर, व्हाट इज देयर, यहाँ पे वो बोलता है, ये देखिए आप इसको क्लिक करेंगे ना तो वो क्या बोलता है, कन्वर्ट टू नंबर। वो क्या, उसने कुछ देखा कि लगता है कि ये आपने इसमें नंबर डाला हुआ है, तो नंबर डाला है लेकिन वो आगे 00 दिखा रहा है, करेक्ट? यस सर, दिखाता है वो। अभी नंबर फील्ड रहेगा तो वो 00 नहीं दिखाएगा कभी, इसका मतलब कि ये टेक्स्ट है या जनरल फील्ड है, करेक्ट? तो कभी कभी यस आपके पास जो डाटा आता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में इसके अंदर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर स्टोर्ड है नंबर। अगर आपको वो नंबर ऐसा का ऐसा रखना है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन समझो आपको मेजर हेड, ठीक है, मेजर हेड के बदले अगर वैल्यू कॉलम में आ गया तो आपको 0070 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, 70 चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको क्या करना है, जहां तक ये आपको दिख रहा है उसको हाईलाइट करना है, और आपका ये जब तक है ना ये आपको दिखेगा हैंडल, उसमें आपको क्लिक करेंगे और कहेंगे कन्वर्ट टू नंबर। जैसे ही आप बोलेंगे कन्वर्ट टू नंबर, वो अभी नंबर फील्ड अपने आप हो गया, देखिए, करेक्ट? यस सर। और ये है ना, आपको बहुत सारी जगह पे जब डाटा कहीं से लेते हैं ना तभी ऐसा होता है, तो उस टाइम पे है ना ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपका ये कहीं पे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपने नंबर में कन्वर्ट किया है तो इट विल बी अ प्रॉपर नंबर स्टोर्ड इन द एक्सेल, करेक्ट? सर ये सेल में जो कॉर्नर में ग्रीन सा कुछ है सर, ये भी इसी की वजह से होता क्या, इसी हैंडल की वजह कहाँ से पे, होता यहाँ है पे क्या सर? कौन सा वाला यस सेल? सर। अभी इसी सेल में ये सर ऊपर है ना, ग्रीन ग्रीन कॉर्नर में बना हुआ है छोटा सा। नीचे नीचे ना, नहीं, हर सेल में सर ऊपर की तरफ आपके लेफ्ट कॉर्नर सेल में नंबर बोलिए, बिल्कुल ऊपर। सेल नंबर कौन सा? सर आई ये आई वाला आई, बोल रहे हैं? आई वाला बोल रही हूँ सर। आई में आई वाले ये में देखिए नंबर सर मैंने मुझे इतना ही दिख नहीं सिलेक्ट रहा। किया था, मैडम मैंने इतना ही सिलेक्ट किया था और उसको इसके ही बिल्कुल कन्वर्ट बाद किया। सर, बिल्कुल हाँ, बाद हाँ, वही 2014 बोल ही रहा था हूँ ना। मैंने हाँ खाली इतना ही कन्वर्ट किया है, नीचे वाला कन्वर्ट नहीं किया था, वो उसमें तो एरर अभी भी है ना। हाँ हाँ, ठीक है तो सर, वही। ऐसा करने के टाइम पे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, शायद ये पूरा का पूरा कॉलम है उसका सभी डाटा में ये प्रॉब्लम है, करेक्ट? यस सर। और मुझे ये भी मालूम है कि इसके अंदर ये जो दिख रहा है वो सबका सब नंबर है, लेकिन ये गलती से उसको टेक्स्ट करके और आगे 0 देके दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मेजर लिखा है वो छोड़ के 0070 पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करूंगा। उससे क्या होगा, कंट्रोल डाउन एरो से क्या करता है वो, जहां तक डाटा है उसका वहां तक चले जाता है वो सर, वो मूव करता है, सिलेक्ट लेकिन कर मैंने लेता शिफ्ट है। यस। दबाया तो वो सिलेक्ट कर लेगा। देखिए शिफ्ट किसके लिए है, सिलेक्ट करने के लिए, करेक्ट? यस सर। आप मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं अगर एरो से, तो एरो से सिलेक्ट कैसे करते हैं, कीबोर्ड से जहां पे भी है वहां से शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे तो
एकदम कंटिन्यूस सेल्स है वो सिलेक्ट होते जाएंगे, करेक्ट। Yes, sir. और हम लोग कंट्रोल डाउन एरो करते तभी क्या होता है, जब तक पहला स्पेस नहीं आता आजू बाजू के कॉलम में, तब तक वो पूरा सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करता हूँ तो वो शिफ्ट के कारण सिलेक्ट भी करता जाएगा। अभी क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा रो नंबर कॉलम का डाटा सिलेक्ट हो गया और सभी डाटा में वो एरर है। तो ऊपर आपको ये दिख रहा है फिल हैंडल अभी भी है, सॉरी एरर का, वो एरर पे क्लिक करना है और कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो जितना भी सिलेक्टेड है, मतलब पूरा कॉलम है, पूरा डाटा नंबर हो जाएगा। हो गया, देखिए, Yes, करेक्ट, sir. एंड हो गया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आपको जब भी ऐसा कुछ आता है तो आपको जितना में भी ये दिख रहा है उसको पहले देखिए कि वो अगर फॉर्मूला का कुछ बता रहा है तो आपको फॉर्मूला सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसा नंबर वाला बताता है, कन्वर्ट टू नंबर वाला, तो कन्वर्ट टू नंबर के टाइम पे आप आंख बंद करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अगर उसको डाटा रखना है न्यूमेरिक तो आप उसको सीधा कन्वर्ट कर दीजिए तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अभी देखिए इसके अंदर जरूरी नहीं है क्योंकि मेजर एंड माइनर एड के आगे हम लोग जीरो लगाते हैं क्योंकि हमको रिसिप्ट मेजर एड के लिए वो चाहिए। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा एरर आता है और उसमें आपको न्यूमेरिक डाटा चाहिए तो उसका कैसे करने का फीचर क्या है, तो मैं फीचर बता रहा हूँ। इसको एक कॉलम के साथ में लिंक करके मत देखिए। समझो आपका ग्रोस अमाउंट है, उसमें ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, नेचुरली वो ग्रोस अमाउंट तो फिगर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए या वैल्यू आना चाहिए। तो वो वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर है, वो बताना जरूरी था। अभी भी देखिए ऑब्जेक्ट हेड में है, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन ऑब्जेक्ट हेड में अभी भी दिख रहा है। तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और अगर उसको इग्नोर करेंगे तो वो निकल गया लेकिन डाटा चेंज नहीं होगा, करेक्ट। ये देखिए डाटा 0 0 रह गया क्योंकि उसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो आपके ऊपर है, आपको कन्वर्ट करना है तो ठीक है, लेकिन वो एरर मैसेज निकालने के लिए आप उसको पूरा सिलेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि इग्नोर दिस एरर, तो वो अभी उसको कंसिडर एज एन एरर नहीं करेगा। उसको लग रहा है कि अभी ये डाटा है वो आपको जैसा है वैसा चाहिए, वो नंबर नहीं है, ऐसा आपने एक्सेल को बता दिया, ठीक है। सेकंड थिंग आपने देखा वाउचर नंबर है, उसमें भी अगर ऐसा एरर आता है और आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 1G 2G वो वाउचर का नंबर है, ये तो नंबर नहीं है तो वो तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें आपको देखना है कि जो नंबर कन्वर्ट हो सकता है वो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 1G को वो कैसे कन्वर्ट करेगा, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको आपका डाटा के बारे में मालूम होना जरूरी है कोई भी फीचर यूज करने से पहले, ठीक है। आई होप ये फीचर आपको यूजफुल रहेगा और आप लोगों की समझ में आया है। कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए बीच में, नहीं तो हम लोग एक एक फीचर यूज करते जाएंगे। इट विल बी नेवर एंडिंग, ये चलता ही रहेगा। काफी फीचर्स Sir, है मेरे पास। यस sir, I have a question. यस सर कई बार जैसे कि ना हम दो सेल्स के कंटेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो थर्ड यस, सेल में हमारा आंसर आता है वो सर ई के फॉर्म में आता है, यानी 10 टू द पावर की नहीं नहीं वही फॉर्म में बता दो आता मैं, है। वो बता दो मैडम, बता दो। ओके सर। इसमें क्या रहता है ना मैडम, जो थर्ड सेल में आपने कर लिया ना, पहले पूरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बराबर। यस सर। करने के बाद में आपके पास दो तीन ऑप्शन है और सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। सेल को यस सर। फॉर्मेट करेंगे आप तो सेल का फॉर्मेट में कितना डेसिमल होना चाहिए वो उसमें आता है, नंबर 1। तो आपको नंबर करके जब उसको सिलेक्ट करेंगे ना, उसको सेल को जब ऐसे, जैसे ये सेल है, ये सेल को मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो नंबर करके अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके तब अंदर ठीक कितना होता है सर डेसिमल वो। चाहिए। हाँ, यस सर। तब जाके ये ठीक होता है कितना, सर वो। हाँ आपका जो है ना वो एक्सपोनेंशियल में जा रहा है, बराबर है। यस सर, वो फ्रैक्शन में एक्सप्लेनेशन। है या एक्सपोनेंशियल में उसमें जाता है, यस करेक्ट। सर। ये यस नंबर सर। फॉर्मेट के अंदर कभी जाता है, दो चीजें, एक है उसका डेसिमल जो है ना बहुत सारा है और वो एक्सपोनेंशियल में चला गया तो उसका इंटीजर पार्ट ज्यादा नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये नंबर जब करेंगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि नंबर भी जो है ना वो काफी बड़ा नंबर उसमें स्टोर कर सकता है, तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ आपको लाइव, वो आपके पास डाटा नहीं होगा इसमें लेकिन मेरे पास बहुत सारे डाटा है। हमारे पास ये जो
यूजर्स है ना हमारे जो, उसका हमारे पास हम लोग आरटीआई में जो डाटा आता है साइंस सिस्टम से, तो साइंस सिस्टम में हर एक ये जो क्या कहते हैं यूनिट है हमारा, जैसे कि हर आरटीआई को एक नंबर दिया है, तो वो 10-12 डिजिट का 15 डिजिट का ऐसा देते हैं। अभी इसके अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो वो आप जैसे बोला ना वैसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। लेकिन उसको जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा ना अगर, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर में, उसके अंदर से डेसिमल पूरा निकाल दिया तो पूरा नंबर आ जाएगा। तो आपको वैसे वो डाटा है उसको एडजस्ट करना है। ओके सर। एक सेकंड ना, अगर वो डाटा आता है तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ इसके अंदर कुछ है क्या डाटा। अगर वो ये देखिए ये नंबर है ना, यस कोर्स सर। कोड बड़ा है, उसमें देखिए ये दिया है बराबर है। अभी मैं आपके सामने देखिए इसको सिलेक्ट करके अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए कैसा आया, ऐसा डाटा आ रहा है ना मैडम। यस सर। करेक्ट। यस सर। लेकिन उसके अंदर स्टोर हुआ है मैडम, तो अभी इतना बड़ा डाटा है लेकिन आपने उसको खाली नंबर में कन्वर्ट किया, उसका जो सेल का फॉर्मेट है ना वो चेंज करना पड़ेगा आपको। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके उसको उसको नंबर नंबर, पे ये लाना जनरल पड़ेगा। करके दिया है ना, जनरल यस वो सर। बाय डिफॉल्ट है, उसको अगर आप नंबर कर देंगे, और मेरे उसमें डेसिमल नहीं था तो मैं 0 डेसिमल कर रहा हूं, अगर मैं ओके किया द फुल नंबर विल बी विजिबल। ठीक है, यस सर। तो आपका वही डाउट था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आई होप इट इज क्लियर। यस सर, नाउ क्लियर। तो ये सब चीजें है ना वो डे टू डे यूज में ये सब चीज होते रहती है, तो आपको वो ध्यान रखना है। अभी तक जो कवर हुआ उसमें और कोई डाउट मैडम या और किसी को? नो इज इट सर। ओके सो फार? यस सर। अभी आप देखेंगे फीचर्स आर नेवर एंडिंग, लेकिन हम लोग एक एक फीचर लेंगे जिसमें बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था। अभी मैं आपको एक बताता हूं कि इसको मैं पूरा डिलीट कर दिया। अभी समझो मैं यहां पे लिखता हूं डीए रेट, फ्रॉम डेट, ये दो चीज मैंने लिखा, और यहां पे एम्प्लॉय नेम, बेसिक एंड डीए। समझो ये खाली इतना सा मैं बता रहा हूं, मतलब एकदम शॉर्ट में बताने के लिए। तो समझो यहां पे मैंने डीए रेट लिखा 28%, और फ्रॉम डेट अभी कोई भी डेट डाल दीजिए, 1 से 19 से 28 है समझो। अभी यहाँ पे समझो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ए बी सी डी ई एफ जी, अभी इतने सारे एम्प्लॉइज है जिसका मेरे पास डाटा है। ठीक है, और उसका बेसिक पे मैं डाल रहा हूँ 500, 42,000, 87,300, 48,600, 74,000, 33,500, 60,200। समझो इतना हम लोगों ने डाला। अभी इसका डीए निकालते हैं हम लोग, तो डीए का रेट मैं डायरेक्ट टाइप करूंगा समझो यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय डीए रेट। करेक्ट, तो हमारा डीए रेट कितना है 28%, तो ये आ गया 10220। अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लूं नीचे तो सबका आ गया। ठीक है, अभी आप बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 26 इंटू 28%। कल को अगर 28 का 31% हो गया तो क्या होगा, हमें इसका कोई फायदा ही नहीं है इधर लिख के, इधर हमको वापस 31% करके सब जगह पे कॉपी करना पड़ेगा। अभी ये तो एक फॉर्मूला है, 10 जगह पे वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं,
अभी इसके ये जो कंसेप्ट है ना वो बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप जरा मुझे बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। एनीवन? सर फॉर्मूला बार में जाके 28 यस, को 30 करना पड़ेगा। फॉर्मूला बार में जाके सर 28 को 30 कर दो। यहीं पे ना, नहीं यहाँ पे सर, करना हाँ पड़ेगा यस सर कि ऊपर कर फॉर्मूला, दूं? यस सर, ऊपर ऊपर सर। तो ऊपर मैंने 31% कर दिया, लेकिन इधर चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? सर सिलेक्ट कर नहीं किया होगा इसको। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 28% लिखा हुआ है मैडम। मैंने ये सेल का रेफरेंस ही नहीं लिया, करेक्ट? यस सर। रेफरेंस जब तक नहीं लेंगे तब तक फॉर्मूला हाँ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कैसे होगा? फॉर्मूले इसका इम्प्लीमेंट। मतलब कि मैं एग्जैक्टली टाइप किया है 28%, जो कि स्टैटिक वैल्यू है। ये वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं उधर जाके चेंज नहीं करूं। अभी ये समझो मैंने चेंज भी किया, तो ये सेल में भी लिखा है, ये सेल में भी लिखा है, ये सेल में लिखा है। हो सकता है मैंने यहाँ पे उसका यूज किया हो, यहाँ पे भी यूज किया ये 28% का। तो जहां जहां यूज किया है वहां पे जा जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो वो तो एडवाइजेबल नहीं है। अगर एक जगह पे भी छूट गया तो आपका डाटा पूरा गलत हो जाएगा, करेक्ट? तो यस सर। एक्सेल में वो जो फीचर है कि अगर मैं डायरेक्टली वो ले लूं, इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाइड बाय 31% डी है, करेक्ट? अभी मैं सेल दे रहा हूं, देखिए B1, B1 को डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। अभी देखिए ये डाटा चेंज हो गया। अभी मैं देखो चेंज करता हूँ 31 का 30 करता हूँ, तो देखो अमाउंट चेंज हो गया। नीचे नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट सेल में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 28% लिखा हुआ है, वो स्टैटिक वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है रेफरेंस ऑफ अ सेल। वो फॉर्मूला है कि इसका बेसिक के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो बेसिक चेंज हुआ या डीए रेट का सेल चेंज हुआ तो ये पूरा अमाउंट चेंज होते रहेगा। तो वो डायनेमिक हो गया, करेक्ट? अभी मुझे बताइए सेकंड सेल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे 30% लाने के लिए क्या करूँ? अभी 28 है, कोई सर बताएगा? फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो नीचे तक, वो सब में अप्लाई ठीक हो है, तो जाएगा इसको मैं फॉर्मूला। सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये करता हूँ। क्या आया? सर ई की वैल्यू नहीं होगा सर ऐसे। हाँ नहीं, नहीं इसलिए सर। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों में से किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, तो आपका डाउट क्लियर होने के लिए सर वो पहले ये मालूम होना चाहिए कि एरर क्यों आता है। आपको कंसेप्ट समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि एरर क्यों आया, हमारी कहाँ गलती हो गई। हम रूटीनली ऐसा कॉपी पेस्ट करते हैं या पैंडल फिल करते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि एरर क्यों आया, फिर आप समझ सकते हैं। कोई बता सकता है ये क्यों आया एरर? स्टैटिक सेल यूज करना है तो सर डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा, कॉलम से पहले भी और रो से पहले भी। करेक्ट है, तो वो उसका मीनिंग मैं बताता हूँ, इसलिए मैं वो रेफरेंस वाला पार्ट मैंने जो आपसे डिस्कस किया अभी कि ये रेफर कर रहा हूँ। देखिए पहले मैं स्टैटिक डाटा डाल रहा था, तो स्टैटिक डाटा इज नॉट एडवाइजेबल इन। अब अगर कोई एक बार फाइल बनाया और बाद में उसका यूज नहीं कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको रीयूज कर सकते हैं अगर उस फाइल को या करना है, तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज द फॉर्मूला विच इज डायनेमिक। तो अगर मैंने यहाँ पे डायनेमिक कर दिया, कैसे कि अगर मैं डी रेट यहाँ पे 30 के बदले 40 कर दूं तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो ये डायनेमिक आ गया। लेकिन वो डायनेमिक में ये एक सेल है जो B1 है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि B6 मल्टीप्लाइड बाय B1, ये देखिए, तो ये दो सेल आ गए। लेकिन जैसे ही मैं उसको नीचे कॉपी करता हूँ वो बोलता है B7 मल्टीप्लाइड बाय B7 तो होना चाहिए, लेकिन B2 नहीं होना चाहिए, B1 ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेल में जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। आप अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो कॉलम का रेफरेंस भी चेंज होगा, और आप अगर नीचे जाएंगे तो रो नंबर चेंज होगा, करेक्ट? अपने आप चेंज होगा क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं होना है, तो उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेफरेंस रिलेटिव सेल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है? ये जो इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ डायरेक्ट है। अगर इसको आप नीचे लेंगे जब भी, तो वो उससे रिलेटेड सेल नीचे जाएगा। अगर आप तीसरे में जाएंगे तो वो उससे नीचे तीसरे में जाएगा। अगर आप राइट में जाएंगे तो वो ये सेल के राइट में जाएगा, तो वो रिलेटिव वैल्यू लेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही सेल का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए वो सेल का रेफरेंस जहां करते हैं B1, उसमें आपको डॉलर साइन डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको F4 दबाएंगे
तो B और 1 दोनों के सामने अपने आप एब्सोल्यूट रेफरेंस आ जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब सिंगल सेल खाली वो रेफरेंस रहेगा, कहीं पे भी वो चेंज नहीं होगा। आप 10 जगह पे कॉपी करो, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेगा। तो अगर मैं इसको F4 दबाता हूं तो देखिए $B $1 हो गया। आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन F4 इज द शॉर्टकट। जो भी सेल को आपको करना है वो सेल को सिलेक्ट करके व्हाइल टाइपिंग द फॉर्मूला आप उसको F4 दबाएंगे तो $B $1 हो गया। अगर C3 रहता तो $3 हो जाता था। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस अब मैं करता हूं। अभी मैं अगर इसको कॉपी करूंगा नीचे तो वो दूसरा सेल को रिलेटिवली नहीं लेगा, वही सेल को लेगा और आपका पूरा वैल्यू बराबर आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे 30 का 33% कर दिया तो सब जगह पे चेंज हुआ, देखिए सब जगह पे 33% वैल्यू आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्मूला हैंडलिंग एंड रेफरेंसिंग से डायरेक्ट स्टैटिक वैल्यू यूज करते हैं, रेफरेंस इन द सेल विद द रिलेटिव वैल्यूज और रिलेटिव प्लेस, एंड थर्ड थिंग इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पे भी डाटा है वो डाटा को आप फिक्स कर देते हैं, वो सेल को आप फिक्स कर देते हैं। जहां जहां आप कॉपी करेंगे वो सेल का नंबर या सेल का रो या कॉलम का नंबर चेंज नहीं होगा। करेक्ट? I think you people are getting this. What is the relative reference and what is the absolute reference? Correct? Are you getting this? Yes. Yes, sir. Any doubt in this? Any doubt in this? सर एक बार थोड़ा डॉलर का दोबारा बता दो। ठीक है, डॉलर वाला मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ मैडम, दूसरा तरीका करता हूँ। समझो, ये मैं निकाल लेता हूँ डी। अभी आप समझो यहाँ पे आप एक जगह पे एक वैल्यू दिया है, करेक्ट? 33%। यस सर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये अपने 10 का टेबल बनाया, समझो बच्चों को सिखाने के लिए आपने 5 का या 10 का टेबल बनाया, तो ये फर्स्ट कॉलम में आप 5 ही कॉपी करेंगे सब जगह पे, यस सर। जो भी है, और इधर मल्टीप्लायर डालेंगे 1 2 1 and 2 and 3। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल करके। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे अगर आउटपुट लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। करेक्ट? यस सर। ठीक है, अभी जब हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, तो वो सेल इसका कौन सा होगा, F7। पहले 6 था, 7 अभी 7 फिर 8 9 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, G1 G6 7 8 9 10 दोनों चेंज हो रहा है। करेक्ट? यस सर। तो दोनों चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो F6 G6 किया है उसको रिलेटिव रेफरेंस दिया है। हम अगर उसको डाउन लेंगे, समझो F6 G6 को हम लोग एक डाउन लेते हैं तो रो नीचे लिया, एक रो नीचे लिया तो वो F7 G7 हो जाएगा, देखिए। यस सर। फिर वापस डाउन लेते हैं तो F8 G8 हो गया। F8 G8 हो गया। यस सर। लेकिन अगर मैं राइट साइड में लेता हूँ उसको, देखिए मैं राइट साइड में लेता हूँ तो मैं अभी पहले क्या है, F6 एंड G6 है, तो वो क्या कर देगा, G6 एंड F6 कर देगा, वो एक कॉलम ऐड कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या आया, G एंड H आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक कॉलम शिफ्ट किया तो उसने भी ये कॉलम, ये 2 कॉलम था उसके बाद उसने ये 2 कॉलम ले लिया। ये 2 कॉलम शिफ्ट कर दिया। यस सर। करेक्ट? तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिवली। तो ये रिलेटिव जब रहता है तभी आपका जो भी फॉर्मूला है वो रिलेटिव सेल के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे वही जरूरी है, रिलेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 भी हमने 10 बार लिया है, लेकिन समझो मैं बोलूं ये 5 10 बार मैं क्यों लूं, मुझे 5 10 बार नहीं लेना। करेक्ट? यस सर। 5 तो एक ही बार है ना, तो मेरे को 10 बार Yes. लिखना पड़ रहा है। अगर मैं 5 निकाल दूं यहाँ पे 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 है ना वो F6 में है, आप डायरेक्ट F6 से ले लो ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो F6 और G6 दिया है ना, तो G6 बराबर है G6 G7 G8 मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव वैल्यू हमने अलग अलग डाला हुआ है। लेकिन तो सर ये जो इसको $F $6 कर देते हैं।
हाँ करेक्ट, वही मैं वहीं पे आ रहा था कि एफ का हमको फिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उधर एफ को दबा के उसको डॉलर कर दिया। अभी क्या होगा, एफ चेंज नहीं होगा लेकिन जी चेंज होगा, करेक्ट। यस तो सर। अगर अभी मैं एंटर कर दिया, अभी भी 5 ही आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, मैंने नीचे उसको कॉपी नहीं किया। अभी जैसे ही कॉपी करूंगा वो हर जगह पे 5 डायरेक्ट एक ही जगह से लेगा। ओके सर, ओके। ये एग्जांपल से समझ में आया या और कुछ लेना है यस मैडम? सर, यस सर। नहीं सर, पक्का? आ गया। थैंक यू, थैंक यू पक्का ना? सर, थैंक यू। ये क्या है ना, रेफरेंस के लिए है ना, जब हम कभी कभी एक से एग्जांपल से नहीं आया तो दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, तो अपना और फाइन ट्यून होता है और अपना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। फिर बाद में हम लोग जब यूज करेंगे ना, तभी हमें उसका आउटपुट जब आता है ना, अगर रिलेटिव लिया और एब्सोल्यूट लिया, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। मैं सबको एक बताता हूँ कि अगर ये क्लास होने के बाद में, मोस्टली आप लोग करते ही होंगे, लेकिन आप अपना इनकम टैक्स का, अगर आप खुद एक एक्सेल शीट बनाए और उसमें आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट है, वैसी फॉर्मूला अगर आप बना दे, तो मैं मानूंगा कि आप लोग काफी लेवल तक, बहुत अच्छा लेवल तक सीख गए। आप ये कोशिश जरूर करना, दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। दोज हु फील इट इज ओके, यू कैन ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसमें भी हेल्प करूंगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि वो हमें यूजफुल भी है, उससे हम लोग डायरेक्ट रिलेट करते हैं, और उसमें इतना बहुत सारा चीजें कि जो आपको यूजफुल है, जैसे कि आपका अपना खुद का, आप बेसिक पे मंथ वाइज, फिर उसका डीए, एचआरए, सीसीए या जो भी आपका डिडक्शन होता है वो, और फाइनल में नेट पे रिकवरी सब करके अगर आप लेंगे, तो आपके पास एक आपका पूरा एक साल भर का डिटेल भी रहेगा, और आप एक्सेल में भी आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं तो सालों से वो एक एक्सेल शीट बना के रखा है, उसमें मैं यूज करता हूँ जब भी फॉर्मूला चेंज, रेट जैसे इनकम टैक्स का और सब चेंज होता है, या जो भी चेंज होता है वो मैं उसमें अपडेट कर रहता हूँ फॉर्मूला में, तो वो हो जाता है। तो आप लोग भी वो कोशिश करेंगे, और अगर आप लोगों में से जो लोग सक्सेसफुल होंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ पे जो लेक्चर में मैंने बताया वो सक्सेसफुल होगा। सेकंड थिंग, ओके सर। अभी इसके अंदर बहुत सारे फीचर सब लोग यूज करते हैं, और किसी किसी को मालूम होता है, किसी किसी को नहीं होता है, शायद आप लोगों ने यूज किया भी रहेगा। अभी ये जो बेसिक का लास्ट सेल में मैं गया, तो यहाँ पे मुझे अगर टोटल लेना है तो कैसे लूंगा, कोई बताएगा? सम लेना है तो सम वाला टोटल, फंक्शन लगा दो। अच्छा मतलब आप लोगों ने सम फंक्शन यूज किया है, बराबर है? यस सर। क्या कैसे रेशो यस आप बताएं, B12 तक। नहीं बताइए ना, मैं सर टाइप करूंगा, आप बोलिए क्या करना है। इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, और सर अब जहां से आपने लेना है, मान लो कहाँ से लेना है, B6 से लेना है या C6 से लेना है, और जहां तक जाना है C13 तक, ठीक है फिर यस। सर वो बंद कर दो अभी उसको। समझो ये मैं B6 से B12 है वो टाइप करूं तो नहीं चलेगा? सर इसको बंद करना पड़ेगा, फंक्शन पूरा नहीं हुआ ये। ठीक है मैं वो वापस करता हूँ, इज इक्वल टू सम, ओपन द यस सर, ब्रैकेट। अभी ओपन क्या द करना है ब्रैकेट। मुझे, बी सर B6, B6 टू B12 तो 2 कैसे रेशो, करना है? सर रेशो डाल दो ना, बीच में रेशो वाला साइन। कॉलन, करेक्ट, कॉलन डबल ना? रे, हाँ हाँ, कॉलन हाँ, कॉलन और सर। B12, B12। करेक्ट। देखिए अपने आप देन आ गया ना। यस सर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने जो बोला ना सिलेक्ट करने का, वो जब छोटा वैल्यू रहेगा 10 12 15 20 एक आध पेज का तो ठीक है। अगर आपका 10 पेज 25 पेज 50 पेज का है, 1000 रिकॉर्ड है, तो आपके ऐसे सिलेक्ट तो करते नहीं बैठेंगे ना। यस सर। आपको स्टार्टिंग का कॉलम का कौन से रो का स्टार्ट है, हाँ कौन सा कॉलम एंड है वो मालूम है, तो आप डायरेक्ट टाइप करना बेहतर रहेगा। अगर यस सर। ज्यादा वैल्यू, छोटा वैल्यू है आपके सामने दिख रहा है, कर लिया, फटक करके हो जाएगा। हम लोग ट्रायल में छोटा वैल्यू लिया है, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि यही चीज अगर मुझे इसमें करना है तो कैसे करूंगा मैं? ये नेट अमाउंट का मुझे टोटल चाहिए, कैसे करूंगा? सर इसमें पहला K2 से लेके जहाँ एंड तक जा रहा है सम फंक्शन लगा दो वो। नहीं मैं एंड कैसे जाऊं? एंड कंट्रोल टाइप करके तो डाउन डाउन एरो से सर। हाँ, अभी मेरा कर्सर है K1, हाँ, मतलब नेट अमाउंट लिखा है वहां पे। नेट वहां पे अमाउंट को चला मुझे जाता है एरो। टोटल में डालना है क्या? नेट अमाउंट को मुझे टोटल में डालना है। नहीं, नेट अमाउंट लिखा हुआ है वो तो टेक्स्ट है ना, तो वो तो टाइटल को तो टेक्स्ट है मुझे नहीं सर, इसको लाना तो है ना, हमें नहीं काम है। मुझे 2 से चालू B2 करना से है, तो बराबर।
K2 से स्टार्ट होगा सर, सम K2 से लेके एंड तक जाओ। अगर कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर मैं करूं तो 2 से लेके एंड तक सिलेक्ट हो गया, करेक्ट? Yes, sir. मतलब देखिए 53,000 रोज को मैंने एक एरो से सिलेक्ट कर लिया, बराबर। अभी मुझे सम चाहिए तो कैसे मिलेगा? Shift. सम कैसे मिलेगा? सर सम फंक्शन लगा दो इस पे। लेकिन ये तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सर, ऑटो सम। हाँ, ऑटो सम कैसे करूं? अभी डायरेक्ट क्लिक करूं, देखिए हाईलाइटेड डाटा है, ऑलरेडी हाँ। हाईलाइट किया है डाटा सर। हाँ, तो फिर सर कैसे ऑटो सम करें? देखिए फंक्शन पे क्लिक करो तो हो जाएगा। सर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज करने के लिए इसके अंदर अलग अलग तरीके हैं। आपको जितने ज्यादा तरीके मालूम पड़े, आपका टाइम बचेगा, आपको शॉर्टकट मिलेगा, आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका मिलेगा। तो हर सिनेरियो में आपको अलग अलग तरीके से यूज करना है, करेक्ट? पहले हम लोगों ने एक्चुअली टाइप किया, सेकंड में मैंने सिलेक्ट किया है, उसको शिफ्ट दबा के अगर नेक्स्ट तक मैं अगर एक्सटेंड कर लिया, नेक्स्ट रो तक, बराबर है? खाली है ना एक नीचे, ये पूरा डाटा खत्म हुआ, बाद में और एक खाली है, बराबर। ये मैंने जो ऐड किया, आपने देखा एक 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 नेक्स्ट रो में मैं शिफ्ट करके क्लिक किया तो वो भी हाईलाइट हो गया, ब्लैंक रो। ये ब्लैंक सेल आपको दिख रहा है ना सबको? Yes, मैं sir. वापस करता हूँ, स्टार्टिंग में गया मैं, हाँ 2 नंबर पे मैं गया, शिफ्ट कंट्रोल एंड, तो वो यहाँ पे आ गया, शिफ्ट दबा के और एक रो मैंने, सॉरी और एक सेल मैंने हाईलाइट किया। मतलब ये पूरा का पूरा जो ऊपर है उसके नीचे और एक मैंने सेल बनाया और यहाँ पे ऑटो सम है उसके ऊपर क्लिक किया, करेक्ट? देखिए पूरा हाईलाइट हो गया। अभी आप देखेंगे ना अगर यहाँ पे, तो ये देखिए पूरा हाईलाइट हो गया और यहाँ पे सम भी आ गया, देखा आपने? ये देखा सम? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब कि अगर आप पूरा हाईलाइट किया हुआ है, नेक्स्ट सेल हाईलाइट कर लो और ऑटो सम पे क्लिक कर दो, ऑटो सम अपने आप उतना आपने जितना हाईलाइट किया वो ले लेगा, ठीक है? ये भी एक तरीका है और बहुत यूजफुल है, आपका टाइम बचा सकता है, ठीक है? बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक आप इक्वल टू करके वो सम करके टाइप करके आपको रो नंबर कॉलम नंबर सब मालूम है तो उसको टाइप कर सकते हैं। दूसरा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब सम लिख के फिर आपको हाईलाइट माउस से कर सकते हैं। तीसरा आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हर अलग अलग तरीका है। अभी समझो मैं इसको डिलीट कर दिया और डायरेक्ट वहां पे गया नीचे और वहां पे खाली ऑटो सम पे क्लिक किया तो वो अपने आप हाईलाइट कर रहा है और मैं एंटर कर दिया तो आ गया वैल्यू। वैसे भी कर सकते हैं आप बिना हाईलाइट किए। तो हाईलाइट करके कैसे करना, बिना हाईलाइट किए लास्ट सेल में कैसे करना, एक चीज याद रखना, आपने अगर हाईलाइट करके नीचे गए हैं तो आपका पूरा हाईलाइटेड डाटा का सम लेगा, जबकि आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी लास्ट में किया ऑटो सम यहाँ से कर रहे हैं और सोचिए कि यहाँ पे एक डाटा नहीं है और मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ तो वो जहाँ पे ब्लैंक आया ना वहीं तक का डाटा लेगा। इसलिए आपको हमेशा देखना है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है सेल का। कभी कभी अगर डाटा नहीं है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है और आपका डाटा गलत हो सकता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जब डायरेक्टली लास्ट सेल में जाके अगर ऑटो सम करते हैं वो जब तक उसको डाटा मिलेगा, अगर स्टार्टिंग तक डाटा है एक भी ब्लैंक नहीं है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू लेगा। लेकिन अगर बीच में ब्लैंक है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल, यू शुड बी चेकिंग इट, ठीक है? आर यू गेटिंग? इसमें खाली फीचर नहीं देखना है, फीचर कैसे करते हैं उसका लिमिटेशंस क्या है सब चीज मालूम होना चाहिए, तो हमारी मिस्टेक कम होगी। इसमें वो एरर मैसेज नहीं दिखाएगा लेकिन आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। अभी जो मैंने यहाँ पे माइनस दिखाया कि ये डाटा नहीं है, उसके बदले में समझो ये स्टार्टिंग में कहीं पे डाटा नहीं है तो आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझो ये 13,000 वाला 10,000 वाला कॉलम में ये डाटा नहीं है और अभी मैं अगर उसका ले रहा हूँ टोटल, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ऊपर का 10-12 हजार का छूट जाएगा, क्योंकि आप देखिए कहां से चालू हो रहा है, ये 10,032 से चालू हो रहा है तो वो गलत है। तो इसलिए आपको ये भी चेक करना है, यू शुड बी 100% श्योर व्हाइल यूजिंग एनी काइंड ऑफ फीचर। हर एक फीचर का प्लस माइनस आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट। फीचर तो सब जगह पे अवेलेबल रहेगा लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में उसका क्या इम्पैक्ट है वो आपको मालूम पड़े तो आप कौन से फीचर को कहाँ यूज करेंगे, कौन सा फीचर आपके लिए इजी पड़ेगा, कहाँ टाइम बचेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है?
आई होप कि थोड़ा एक सिंपल सा आपको जो मैंने बताया जो डे टू डे में यूजफुल है तो आप लोगों को समझ में आया होगा. Any doubt on this so far? No, sir. ओके. नाउ अभी हम लोग आगे जाएंगे. अपना टी टाइम को थोड़ा टाइम है करेक्ट. 10 मिनट लेंगे चलेगा. 15 मिनट्स होता है सर. 15 मिनट्स ना तो हम लोग 10-15 मिनट के बाद में हम लोग स्टॉप करते हैं और टी के बाद में